دہشت گردی کے خلاف دنیا پاکستان کے ساتھ، عالمی برادری کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، شنگھائی تعاون تنظیم کی جعفر ایکسپریس خوزدار حملوں اور پہلگام واقعے کی سخت مذمت، مشترکہ اعلامیہ جاری، اجلاس میں دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتفاق، انسداد دہشت گردی تعاون پروگرام پر عمل درآمد جاری رکھنے کا اعلان، فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار، رکن ممالک نے 2035 تک ایس سی او کی ترقی کی حکمت عملی بھی طے کر لی، مشترکہ اعلامیے میں ایران پر 2025 کے حملوں کی مذمت بھی کی گئی۔ We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. دہشت گردی اور علیحدگی پسندی پوری ایس سی او کے لیے خطرہ، بلوچستان اور کے پی میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں کے سامنے معاملہ اٹھا دیا۔ ایس سی او سربراہ اجلاس میں کہا، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، اسرائیل کے ایران پر دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کسی بھی ملک کے لیے خود مختاری اور علاقائی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کثیر الجہتی مکالمے اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ غزہ میں جاری ظلم اور بھوک ہمارے اجتماعی زمین پر نہ ختم ہونے والا زخم۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منظور کردہ 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ کے حالات دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تیانجن میں اہم ملاقات، پاکستان اور ایران کے تاریخی برادرانہ تعلقات، 2 طرفہ تعاون، علاقائی استحکام اور سیاسی اور اقتصادی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر آذربائیجان سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ایس سی او وقت گزرنے کے ساتھ تناور درخت بن چکی ہے۔ رکن ممالک کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ چین کے صدر کا ایس سی او کے سربراہی اجلاس کا خطاب، صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دے دی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن بولے، امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین میں امن کے راستے کو کھولا۔ یوکرین میں بحران حملے سے نہیں بلکہ یوکرین میں مغربی اتحادیوں کی حمایت یافتہ بغاوت سے ہوا۔ یوکرین میں بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا اور سیکیورٹی کا توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ افغانستان میں زمین لرز گئی، 6 شدت کے خوفناک زلزلے نے تباہی بکھیر دی۔ زلزلے کے جھٹکے کابل سے لے کر پاکستان کے شہر اسلام آباد تک محسوس کیے گئے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار اور کنڑ میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر، اموات کی تعداد 800 سے بڑھ گئی، 2500 سے زائد زخمی۔ زلزلے سے کئی گاؤں مٹی تلے دب گئے۔ زلزلے کا مرکز جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ امدادی کارروائیاں جاری، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر اظہار افسوس، انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ امریکی مصنوعات پر 0 ٹیرف کی پیشکش مسترد، ٹرمپ نے بھارت کو کھری سنا دی۔ امریکی صدر نے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، بھارت کو ایسا کئی سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ بھارت نے امریکہ پر دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ محصولات لگا رکھے ہیں۔ امریکی کمپنیاں بھارت میں اپنی مصنوعات بیچ نہیں پاتی۔ بھارت اپنا زیادہ تر تیل اور فوجی ساز و سامان روس سے خریدتا ہے۔ بھارت تیل اور فوجی ساز و سامان امریکہ سے بہت کم خریدتا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھواں دھار بارش، مختلف علاقے زیرآب۔ اسلام آباد کا سیکٹر G11 ڈوب گیا، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بنی گالا اور سری نگر ہائی وے پر بھی پانی جمع۔ سیکٹر H8 میں 95 ملی میٹر بارش ریکارڈ، گولڑا میں 66، سید پور میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کٹاریا میں پانی کی سطح بلند، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔
दरिया रावी, चनाब और सतलुज में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल। आबी रेलों से बस्तियों की बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लाखों अफराद बेघर, रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर। भारत ने सलाल और बदलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए। भारत ने दरिया चनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग भी नहीं दी। पीटीआई में पंजाब के मुताबिक भारत ने सिर्फ हरीके के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग दी थी। गंडा सिंह वाला और हैड तरीमों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाब से 20 लाख से जायद अफराद बेघर, 35 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी। 2,000 से जायद देहात सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। 7,60,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया रावी के अतराफ के इलाकों से 2.5 लाख अफराद ने इनखला किया। दरिया सतलुज में सैलाब से 3,68,000 अफराद को घर छोड़ना पड़ा। आप अगर जिन डैमों की आप बात कर रहे हैं उनको 12-15 साल लगेंगे बनते हुए, चाहे वो बादशाह है या मोहम्मद है। मैं नहीं चाहता कि वो ना बनाए, जरूर बनाए, लेकिन उनके बनते बनते क्या हाल हो जाएगा आपका, किधर पहुंच जाएंगे उन डैमों के बनते बनते, आपके हाथ में कुछ रह जाएगा खोने के लिए। सैलाबी सूरत हाल में तारीख की बड़ी आफत का सामना कर रहे हैं। यह कुदरती आफत नहीं, इंसान के अपने हाथ से बनाई हुई आफत है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सैलाब से बड़े नुकसानात की वजह तजावुजात हैं। दरियाओं के रास्ते पर कब्जे किए गए, आबी गुजरगाहों पर घर और होटल्स बनाए गए। ख्वाजा इजहार ने कहा ख्वाजा आसिफ की बातें तल्ख मगर हकीकत पर मबनी हैं। कौमें गलतियों पर डट जाने से तबाह हो जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन में इमदाद तकसीम की। मरीम नवाज को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत, कहा अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। सिंध के इलाके नौशहर और फिरोज के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल संगीन। सैलाब के बाद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, हजारों एकड़ ज़रई अराजी तबाह। दरिया सिंध में 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जमीनी राबता मुनक़ता होने से कच्चे के मकीन सैलाबी पानी में फंस गए। गिड्डू बैराज से 9 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की तैयारी कर ली गई। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर सैलाबी पानी को सुपर फ्लड कहा जाता है। सबसे पहले हमें इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं दरिया रावी, सतलुज और ब्यास सिंध तास मुआहदे के तहत भारत को दिए गए। पीडीएम में सिंध ने हसास करार दिए गए अजला के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया है। पाक फौज का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब के पेश नजर पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग चिन्योट में मौजूद। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की उड़ानें। थर्मल इमेजिंग ड्रोन से दुश्वार गुजार दूर अफ्तादा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की निशानदही के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। झंग के इलाके सीमी पुल बाईपास सरगोधा रोड और दीगर इलाकों से सैलाबी पानी में घिरे 5 अफराद और मवेशियों को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। गुलकारा और अदाकारा आरिफा सिद्दीकी का घर भी सैलाब से मुतासर। लाहौर के इलाके चूंग में सैलाबी पानी उतरने के बाद अदाकारा ने अपने मुतासरा घर की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। आरिफा सिद्दीकी शौहर के हमरा घर की सफाई करती दिखाई दी। अमेरिका, चीन और दुनिया के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात की कामयाबी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी। बैनुल-अक़वामी मीडिया का फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ़। पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबियों का नया दौर। पाकिस्तान के लिए आलमी उफ़क़ पर नई सिफारती कामयाबियों की नवीद। मौक़े हक़ के बाद पाकिस्तान मजबूत और बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ आलमी उफ़क़ पर उभरा। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दिया। चीन ने भी पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून, पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफ़िज़ करार दिया।
पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को चिलास के करीब हादसा। ISPR के मुताबिक पायलट और अमले के अरकान समेत 5 अहलकार शहीद हुए। पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नायक आमिर भी शोहदा में शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की अवामी बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से मुलाकात। चीन की सियासी, सिफारती और मुआशी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी और इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना की इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन से भी मुलाकात। तरक्याती फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग पर ICBC के ताउन को सराहा। 9 मई को थाना शादमान हमला, शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के मुकदमा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट तीनों मुकदमात में सजा का लदम करार दे। अदालत अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। कराची में 27,000 वालिदैन ने पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत का बड़ा इंकशाफ। कराची में तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस रह गया है। हमें तो आप एजेंट कह दो। क्या अफगान तालिबान भी बैरूनी एजेंट हैं? पूरे अफगानिस्तान में घर घर, जबकि कंदहार में मस्जिदों में पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। दुनिया में कैंसर समेत हर मर्ज का इलाज है, लेकिन पोलियो का नहीं। सीहोरी फौज की गजा सिटी के चप्पे चप्पे पर आतिशो आहन की बारिश। मकानात और खैमे मलियामेट। सुबह से जारी वहशियाना कार्रवाई में 44 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। भूख की शिद्दत से मजीद 7 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजा का गैर इंसानी मुहासरा तोड़ने का एक और मिशन। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों अफराद का समूद फ्लोटिला में शामिल 44 ममालिक की सियासी और समाजी शख्सियात का खैर मकदम। मौसम काफिले की रवानगी में रुकावट बन गया। तेज हवाओं की वजह से कश्तियां वापस लौट आईं। इसराइली जारहियत में यमनी हुकूमत के शहीद वज़ीर-ए-आज़म और उनके साथी अरकान की नमाज़ जनाजा दारुल हुकूमत सना में अदा। कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अहमद मिफ्ताह की शिरकत ने कहा, हम गजा के साथ हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो तन्हा नहीं हैं। एक अजीम और फैसला कुन जंग में दाखिल हो चुके हैं और अमरीकियों से भी टकरा चुके हैं। दुनिया भर में आबाद कश्मीरी आज बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी मना रहे हैं। सियासी और पार्लिमानी क़यादत का सैयद अली गिलानी को जबरदस्त राज अक़ीदत। सैयद अली गिलानी की तहरीक आज़ादी को कश्मीरी अवाम के लिए मशले राह करार दिया गया। सैयद अली गिलानी ने भारतीय जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, मगर आखिरी सांसों तक गुलामी कबूल नहीं की। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा ने 2 दहाइयों से ज्यादा का अरसा भारतीय जंदानों में गुजारा। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने हुर्रियत रहनुमाओं को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तानी शोबिस के 71 साला सीनियर अदाकार अनवर अली तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे का शिकार थे। कल तबीयत खराब होने पर अस्पताल दाखिल करवाया गया था। अनवर अली ने मुनफरिद अंदाज और बेमिसाल तंज़ो मिज़ाह से लाखों लोगों के दिल जीते। 3 मुल्की T20 सीरीज का तीसरा मैच। अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें आमने सामने। UAE के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग। 16 रन पर रहमानुल्लाह गुरबाज पवेलियन लौट गए। दोनों टीमों को पाकिस्तान पहले मैच में शिकस्त दे चुका है, जबकि चौथे मैच में कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। विमेंस वर्ल्ड कप की मजमूई इनामी रकम $13.8 मिलियन होगी। वर्ल्ड कप की फातेह टीम को $4.48 मिलियन और रनर्स अप को $2.24 मिलियन मिलेंगे।